السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ اولاد تھی۔ بچہ نہ ہونے کا غم بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کی بیگم کو تھا۔ وہ دن رات رویا کرتی تھیں، نہ ان کو کھانا پینا اچھا لگتا، نہ کوئی زیور کپڑا بھاتا، نہ کسی تقریب میں جاتی، نہ کوئی خوشی مناتی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو بہت چاہتا تھا۔ وہ ملکہ کو سمجھایا کرتا، تسلی دلاسا دیا کرتا کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی جو انہیں کوئی اولاد نہیں ہے، صبر کرو اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرو۔ بادشاہ کا دل تو حکومت کے کام کاج اور دیکھ ریکھ میں پھر بھی بہل جاتا، مگر بادشاہ بیگم کا دل ذرا نہ بہلتا۔ ہر وقت پریشان اور سوگوار رہتی۔ بہت سے لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جہاں پناہ دوسری شادی کر لیں، شاید نئی ملکہ ان کو تخت و تاج کا وارث دے دے، مگر بادشاہ اس پر تیار نہ ہوئے۔ وہ اپنی بیگم کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ بیگم کی کنیز خاص، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی اور جس کی عقل مندی اور تمیز و تہذیب بادشاہ بیگم کو بہت عزیز تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، بادشاہ بیگم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا اقبال بلند ہو۔ میں نے سنا ہے اپنی حکومت میں کہیں سے کوئی بہت پہنچے ہوئے درویش تشریف لائے ہیں، اور وہ جس کو دعا دیتے ہیں اس کی مراد ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو ان درویش صاحب کو آپ کے حضور میں لایا جائے۔ وہ اللہ سے آپ کے لیے اولاد مانگے اور شاید اللہ آپ کی گود بھر دے۔ بادشاہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، نہیں گل بدن، ہماری مراد پوری نہیں ہوگی، ہماری گود خالی رہے گی، ہمارا یہ تخت و تاج غیروں میں بٹ جائے گا اور ہمارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کو تو معلوم ہے ہم کتنے ہی فقیروں اور پیروں سے مرادیں مانگ چکے ہیں، برسوں ہو گئے کوئی بھی ہماری جھولی نہیں بھر سکا۔ پھر بھی بادشاہ بیگم ایک بار اور کوشش کر لی جائے، شاید اس بار آپ کے دل کی تمنا پوری ہو جائے۔ گل بدن کی بہت خوشامد کرنے پر آخر بادشاہ بیگم اس درویش کو بلانے پر تیار ہو گئی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ بھی ملکہ کا دل رکھنے کے لیے خوشی خوشی ان درویش صاحب سے ملنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس روز محل میں بڑی چہل پہل تھی، خوب سجاوٹ تھی، خوشبوئیں چکراتی پھر رہی تھی پورے محل میں۔ درویش صاحب کے تشریف رکھنے کے لیے تخت بچھایا گیا۔ درویش صاحب آئے، بڑے باروب اور شاندار انسان تھے، چہرے سے جیسے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا تو بولے، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، تخت اور کرسی نہیں جانتے، زمین ہماری بیٹھک ہے، زمین ہمارا بستر ہے۔ اپنی چادر زمین پر بچھا کر بیٹھ گئے اور تسبیح پڑھنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا، دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہنے لگے، بادشاہ بیگم، آپ کو اولاد کا مزہ ضرور ملے گا، لیکن ابھی نہیں، کئی سال گزرنے کے بعد۔ اولاد کی خوشخبری سن کر بادشاہ بیگم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، مگر پھر یہ سن کر کہ اولاد کا مزہ کئی سال بعد ملے گا وہ اداس ہو گئیں۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درویش صاحب ان کی یہ کیفیت دیکھ کر تسلی دینے والے لہجے میں بولے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، آپ کو بھی آپ کے صبر کا پھل ضرور ملے گا، مگر ہم نے کہا نا کچھ سال کے بعد۔ ہاں، اگر آپ کا دل ہر وقت اداس رہتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا مشغلہ نکال لیں جس کی وجہ سے آپ کا دل بہلا رہے، آپ کا دھیان بٹا رہے، آپ کو سوچنے کا وقت ہی نہ مل سکے۔ ذرا چپ رہ کر وہ پھر بولے، آپ کوئی باغ لگوا لیں، بہترین پھول اس میں ہوں، اپنے سامنے اس کی کاٹ چھانٹ کر آئیں۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے،
बाग को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनवाइए, तरह तरह के परिंदे मंगवाकर इसमें रखिए, देखिएगा फिर आपका दिल कितना खुश रहेगा। आप हर वक्त मसरूफ रहेंगी तो आपको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपनी इस महरूमी का एहसास भी नहीं सताएगा कि आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है। बादशाह ये सुनकर उछल पड़े। अरे वाह, क्या तरकीब बताई है आपने जनाब। मलका को चाहिए कि आपके मशवरे पर अमल करें और अपने लिए खुशियां हासिल करें। मलका ने भी इस मशवरे को बहुत पसंद किया और दरवेश साहब का शुक्रिया अदा किया। दरवेश साहब कुछ देर के बाद वापस चले गए। मलका ने दूसरे ही दिन से बाग लगवाने का काम शुरू करा दिया। वो सचमुच बेहद मसरूफ हो गईं। तलाश करके बेहतरीन पौधे मंगवाए गए। बहुत बड़ा बाग बनने लगा। फलों के पेड़ लगाए गए, मेवाजात के पेड़ भी लगाए गए और इनके साथ साथ क्यारियों में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाए गए। मलका अपने इस खूबसूरत बाग की खुद देखभाल किया करती थी। फलों के पेड़ फलों से लदे तो इन पर परिंदे आने लगे। प्यारी प्यारी चिड़ियाएं बाग में चहकारने लगीं। फाख्ता के एक जोड़े ने भी एक ऊंचे घने पेड़ में घोंसला बनाया था। इस घोंसले में मादा फाख्ता ने अंडे दिए, मगर एक अंडा पता नहीं कैसे टूट गया और एक अंडे को दोनों फाख्ताएं मिलकर बारी बारी सीती रहीं और फिर एक बूटी जैसा बच्चा अंडे से बाहर निकला। बादशाह बेगम को फाख्ता का ये जोड़ा बहुत पसंद था। भोले भाले नर और मादा बिल्कुल कबूतर की सूरत थे। ना किसी से लड़ाई न झगड़ा, सारा दिन मजे से बाग में उड़ा करते और दाना दुनका चुगा करते। फाख्ता बादशाह बेगम से इस कदर हिल गई थी कि वो घियो ये जौ के दाने अपनी हथेली पे रखती, वो फुर से आती और दाना उठा के ले जाती। मलका को बड़ा अच्छा लगता। वो हंसती रहती और फाख्ता को दाना खिलाती रहती। कई दिन गुजर गए। फाख्ता का बच्चा बड़ा हो गया। वो अपनी गोल गोल गुलाबी गुलाबी आंखों से बादशाह बेगम को देखता और इनके दिल में गुदगुदी सी होने लगती। कितना भोला और मासूम बच्चा था। ये एक मादा फाख्ता थी और अपनी माँ की तरह वो भी बादशाह बेगम से बहुत मायूस हो गई थी। बादशाह बेगम ने इसको फाख्ता शहजादी का नाम दिया। वो इसको आवाज देती फाख्ता शहजादी, और फाख्ता शहजादी बाग में जहाँ कहीं भी होती उड़ती हुई इनके पास आ जाती कि मैं अपनी फाख्ता बेटी के लिए घुंघरूदार छल्ले बनवाना चाहती हूँ बादशाह सलामत, ताकि वो उड़े तो छनमन की आवाज से बाग में एक अनोखी सी चहल पहल होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बनवाइए मलका आलिया, घुंघरू हमें भी बड़ा अच्छा लगते हैं। बादशाह खुश होकर बोले। लो भाई, देखते ही देखते सोने के घुंघरूदार छल्ले बनकर आ गए। इन घुंघरुओं में हीरे और याकूत जड़े हुए थे। बादशाह बेगम ने बहुत प्यार से फाख्ता बच्ची को पकड़ा और इसके नाजुक नाजुक पंजों में घुंघरू डाल दिए। पहले तो फाख्ता थोड़ी घबराई, मगर फिर आराम से चलने फिरने और उड़ने लगी। वाकई घुंघरुओं की नाजुक नाजुक छन-मन बड़ी अच्छी लगती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। कई साल हो गए। फाख्ता शहजादी अब खूब मोटी ताजी बड़ी हो गई थी। बाग दिन ब दिन खूबसूरत और घना होता जा रहा था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे और बादशाह बेगम की इजाजत लेकर इसकी सैर करते थे। इस बाग का नाम बेगम का बाग पुकारा जाने लगा। एक बार क्या हुआ कि इस बाग को देखने के लिए पड़ोसी मुल्क का एक शहजादा आया। बादशाह ने इसकी बड़ी आवभगत की। शहजादा बहुत खूबसूरत और बहादुर था। बहुत जल्द वो अपने बादशाह बाग की जगह तख्त पर बैठने वाला था। बादशाह बेगम भी इसके आने से बहुत खुश हुई। वो शहजादे को बाग की सैर करा रही थी और फूल और पौधे दिखा रही थी कि शहजादे ने बड़ी अच्छी छन छन की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की पायल पहने धीरे धीरे चल रही है। शहजादा इधर उधर देखने लगा कि कोई नजर नहीं आया। वो कुछ देर चला तो फिर वही आवाज सुनाई दी। घुंघरू छनक रहे थे। शहजादे ने झिझकते हुए बादशाह बेगम से पूछा, बेगम साहिबा, ये घुंघरू की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या हमारे और आपके अलावा
कोई और भी यहाँ टहल रहा है? बादशाह बेगम को शरारत सूझी, हंसकर बोली, हाँ शहजादे, मेरी बच्ची भी बाग की सैर कर रही है। बच्ची? शहजादा बोला, क्या वो बहुत छोटी सी है? बादशाह बेगम ने अपनी फाख्ता को देख लिया था, जो आराम से घास पर चल रही थी, और इसके नाजुक पैरों में बड़े घुंघरू छनक रहे थे। फिर वो उड़कर पेड़ पर बैठी तो छन छन की आवाज और तेज हो गई। शहजादे को यह आवाज बड़ी अच्छी लगी। इसने सोचा, बादशाह बेगम इसको बता नहीं रही, इनकी बच्ची अच्छी खासी बड़ी होगी, वो बादशाह बेगम की तरह ही खूबसूरत होगी। अगर हमारी शादी इसके साथ हो जाए तो क्या कहना, हम भी अपने माँ बाप के अकेले हैं, ये बच्ची भी अपने माँ बाप की अकेली है, यानी वो सल्तनत भी हमारी और ये सल्तनत भी हमारी। हमारी अम्मा बेगम अब बहुत बेईमान रहने लगी हैं। अभी कल ही वो कह रही थी कि इनके सामने हमारी शादी हो जाए तो इनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं वापस जाकर अम्मा बेगम से बात करूंगा। बादशाह और शहजादों की जिद का क्या कहना, जो दिल में ठान लिया वो ठान लिया। शहजादा वापस अपने मुल्क गया तो इसने अपनी अम्मा बेगम से बताया। इनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। बादशाह से जिक्र किया गया तो वो भी तैयार हो गए। अब दूसरी तरफ बादशाह और बादशाह बेगम हैरान रह गए जब शहजादे का रिश्ता इनकी बच्ची के लिए आया। हमारी बच्ची? बादशाह ने बोलना चाहा, मगर बादशाह बेगम ने हाथ दबा दिया और बोली, ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। हमें शहजादा आली कदर दिल से पसंद है, मगर हमारी बेटी अभी छोटी है, कुल 10 बरस की है। हम इसको अभी कैसे ब्याह दें? हाँ, अगर बादशाह आली जा कुछ बरस इंतजार करें तो हम बखुशी ये शादी कर देंगे। जो लोग पैगाम लेकर आए थे, इनको ढेरों इनाम मिला और वो वापस अपने बादशाह के पास गए। मलका बेगम की बात सुनकर बादशाह आलीजा ने कहा, शहजादी 10 बरस की है तो हमारा बेटा 16-17 बरस का है, कोई खास फर्क नहीं है। बादशाह बेगम से जाकर अर्ज करो कि इनकी बेटी हमारी बेटी है, वो शादी के बाद हमारे साथ बिल्कुल बेटी की तरह रहेगी, खाएगी खेलेगी। हमारी बादशाह बेगम की तबीयत ठीक नहीं रहती, इनकी यह ख्वाहिश है कि इनके सामने इनके बेटे के सर पर सेहरा बन जाए, इसलिए हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। इधर बादशाह सलामत बेहद परेशान थे। वो बार बार अपनी मलका से कहते थे, बेगम आपने ये कैसा मजाक किया है, जब हमारे कोई बेटी है ही नहीं तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे? क्या होगा इस मजाक का अंजाम, हम ये सोचकर डरते हैं। बादशाह बेगम को भी थोड़ी सी परेशानी हुई, मगर ज्यादा नहीं। इनको पता नहीं क्यों दरवेश की बात बार बार याद आ रही थी। आपको औलाद मिलेगी, मगर कुछ अरसे के बाद। आप फिक्र ना करें, हम अपने इस मजाक को निभाएंगे और किसी को पता भी ना चलेगा। बादशाह के कासिद दोबारा आए तो बहुत जोर लगाया। बादशाह बेगम ने शर्त रखी, ठीक है, हमें शादी मंजूर है, मगर हमारी एक मजबूरी ये है कि जब हमारी बच्ची पैदा होने वाली थी तो एक दरवेश ने हमें ताकीद की थी कि 12 बरस तक इस बच्चे को लोगों की नजरों से छुपा कर रखा जाए, कोई भी इसकी सूरत ना देख सके, ना बोली सुन सके, वरना बच्ची की जान को खतरा होने के साथ साथ बच्ची के माँ बाप, घर बार सब पर मुसीबत आ जाएगी। या तो कोई जिंदा ना बचेगा, और अगर जिंदा रह भी गया तो मुफलिस यानी फकीर होकर, गरीब होकर दर दर भटकेगा। अब बादशाह अलीजा सोच समझ ले, हमारी शर्त मंजूर कर लें तो ठीक है, हम शादी कर देंगे। वो शर्त ये थी कि शहजादी शादी होकर ससुराल जाए, मगर इसको कोई ना देखे, ना इसकी कोई आवाज सुने। इसके लिए अलग महल रहेगा, इसके साथ सिर्फ इसके मैके से साथ गई हुई इसकी अन्ना रहेगी, वही इसकी देखभाल भी करेगी, वही इसके लिए खाना पकाएगी। बाकी मुलाजमीन रहेंगे तो बाहर कामकाज करेंगे। शहजादी के खास कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा, ना कोई इसको देखने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि इसका शोहर शहजादा भी इसको 2 बरस से पहले देख नहीं सकेगा। ये अजीब व गरीब शर्त बादशाह आलीजा और इनके शहजादे ने मंजूर कर ली। शहजादी के लिए एक महल बनवाया गया,
بالکल अलग थलग बेहद खूबसूरत शानदार महल था, मगर शहर से कुछ दूर एक वीरान जगह, ताकि कोई शहजादी की आवाज ना सुन सके, न इसको देख सके। अजीब महल था, ना कोई खिड़की न रोशनदान, बस सिर्फ एक दरवाजा जो हर वक्त बंद रहता था। मुलाजिम बाहरी हिस्से में रहते थे। गर्ज शहजादा शादी करके शहजादी को महल में ले आया। दुल्हन शहजादी की डोली सोने चांदी के फूलों से लदी हुई थी। इसकी डोली महल में रख दी गई। इसमें कोई नहीं जानता था कि क्या है। लोग ये समझ रहे थे कि दुल्हन है और दुल्हन के साथ आने वाली इसकी खास कनीज गुलबदन है, मगर जब गुलबदन उतरी तो अकेली थी। जाहिर है दुल्हन होती तो उतरती। दुल्हन की बजाय गुलबदन के हाथ में सोने का खूबसूरत पिंजरा था और पिंजरे में बादशाह बेगम की प्यारी फाख्ता बैठी चांदी की कटोरियों में भरा मेवा खा रही थी। शहजादा आली कदर अपनी दुल्हन को ना देख सका, कोई बात ना कर सका, मगर इसको ये इत्मीनान जरूर था कि 2 बरस के बाद वो शहजादी को ना सिर्फ देखेगा बल्कि इसके साथ जिंदगी भी गुजारेगा। और इसी उम्मीद में वो दिन गुजारने लगा। बादशाह बेगम को अपनी फाख्ता शहजादी की याद सताती तो वो कुछ रोज के लिए इसको अपने यहाँ बुलवा लेती। बड़ी ही शान के साथ सवारी जाती और डोली में गुलबदन होती। गुलबदन की गोद में फाख्ता का पिंजरा होता, यानी पालकी के दरवाजे बंद होते। ये बंद पालकी बादशाह बेगम के कमरे में रख दी जाती। बादशाह बेगम बड़ी खुश थी। इनको भी बस यही उम्मीद खुश रखती थी कि एक दिन इनको फाख्ता शहजादी की जगह एक चांद सी बेटी मिल जाएगी। वो दरवेश की पेशनगोई पूरी होने का रास्ता देखा करती थी। कई महीने गुजर गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक रोज शहजादा आली कदर की अम्मा बेगम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने बादशाह अलीजा से कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि मैं जिंदा ना रहूंगी। मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दें ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। बादशाह अलीजा ने आंसू बहाते हुए कहा, मलका, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। मलका ने कहा, मैं चाहती हूँ कि एक बार अपनी बहू शहजादा आली कदर की दुल्हन को देख लूं। बादशाह अलीजा ने घबरा कर कहा, मलका, आपको वो शर्त तो मालूम ही है कि दुल्हन शहजादी को न कोई देखे न इसकी आवाज सुने, वरना वो भी खुदा न खास्ता मर सकती है और इसको देखने वाला भी खत्म हो सकता है। सिर्फ वही नहीं, इसके खानदान पर भी तबाही आ सकती है। मुझे मालूम है बादशाह सलामत, मगर क्या करूं, दिल नहीं मानता। ये हसरत लेके दुनिया से जाऊंगी तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बादशाह अलीजा परेशान थे कि क्या करें। शहजादा अली कदर भी कम परेशान न था। एक तरफ वो शर्त, दूसरी मरती हुई माँ की ख्वाहिश। वजीर आजम ने मशवरा दिया, सुल्तान आली, एक तरीका है जिससे मल्क आलम की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और शर्त भी नहीं टूटेगी। वो तरीका क्या है वजीर आजम? बताओ, हम बहुत परेशान हैं। बादशाह अलीजा ने कहा और बेचैनी के साथ टहलने लगे। वो तरीका ये है आलीजा कि मलका आलिया का बिस्तरा दुल्हन शहजादी के महल में ले जाया जाए। दुल्हन शहजादी न अपनी सूरत दिखाए न बोली सुनाए, बस कमरे के अंदर टहलने के अंदाज में चले फिरे। इनके पैरों में सुना है घुंघरूदार पायल रहती है। ये इनकी वालदा ने बचपन से इनको पहना रखी है। जब दुल्हन शहजादी कमरे के फर्श पर चलेंगी तो इनकी पायल से घुंघरू छिनकेंगे। ये खनक बाहर आएगी। मलका आलिया इसकी खनक को सुनेंगी। इनको समझाया जाएगा कि इस खनक को सुनकर मुतमईन हो जाएं। इनकी बहू शहजादी इनके पास मौजूद है। वाह वजीर आजम, बादशाह अलीजा खुश हो गए। तुमने तो मेरी परेशानी पलक झपकते में दूर कर दी। फिर मलका बेगम वजीर आजम की बात पर तैयार हो गई। इनकी शाही मसहरी फाख्ता शहजादी के महल में लाई गई। बादशाह भी साथ थे। शहजादा अली कदर भी था। गुलबदन ने पिंजरा खोलकर फाख्ता को कमरे के फर्श पर छोड़ दिया। फाख्ता बड़े आराम के साथ इधर उधर चलने फिरने और दौड़ने लगी। इसके पैरों में बड़े घुंघरू खनक रहे थे।
اور اس کی آواز کو سن سن کر ملکہ خوش ہو رہی تھی۔ اللہ میری بہو کو اچھا رکھے، وہ بڑے پیار سے بولی۔ بس اب مجھے اطمینان ہو گیا، مرتے وقت بھی یہ نازک نازک گھنگرو میری کانوں میں کھنکتے رہیں گے۔ ملکہ اپنے محل واپس لے جائی گئیں اور اسی رات ان بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ شہزادی کو بھی ماں کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ 5-6 ماہ تک سوگ منایا جاتا رہا اور جیسے ہی سوگ کا ماحول ختم ہوا تو شہزادہ عالی قدر کے دل میں پتہ نہیں کیوں اپنی دلہن شہزادی کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ ماں کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگے تھے۔ نہ شکار کھیلنے میں دل لگتا، نہ تلوار بازی یا گھوڑ سواری اچھی لگتی۔ چپ چاپ ادھر ادھر ٹہلا گھما کرتے۔ ابھی 2 برس پورے نہیں ہوئے تھے مگر وہ شرط توڑنے پر تل گئے۔ کیا کرتے، دل سے مجبور تھے۔ اس نے اپنے دوست وزیر اعظم کے بیٹے سے مشورہ کیا، وہ بھی شہزادی کی عمر کا تھا، دونوں ساتھ پلے بڑے کھیلے کودے تھے۔ اس نے شہزادے کو مشورہ دیا کہ ایک دن کمند ڈال کر دیوار سے نیچے محل میں اتر جائیے اور شہزادی صاحبہ کے کمرے میں گھس کر ان کو دیکھ لیجئے۔ آخر وہ آپ کی بیگم ہے، آپ کو حق ہے انہیں دیکھنے کا، ان سے بات کرنے کا۔ رہی وہ شرط تو بھول جائیے، اسے شہزادی چونکہ ابھی چھوٹی ہے اس لیے آپ کی ساس ملکہ نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ شہزادے کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور ایک دن موقع نکال کر اس نے وزیر کے لڑکے کے ساتھ مل کر شہزادی کے محل کی اونچی دیوار پر کمند ڈال دی۔ وزیر زادہ نیچے کھڑا رہا، شہزادہ دیوار پر کمند کے سہارے چڑھا اور محل کے آنگن میں اتر گیا۔ اس کا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا مگر ہمت کر کے وہ آگے بڑھتا رہا۔ شہزادی کا کمرہ سامنے تھا، اندر سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ ضرور شہزادی اندر چل پھر رہی ہے، شہزادے نے سوچا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ گل بدن کہہ رہی تھی، آ جاؤ، بڑی دیر سے میوہ کٹا رکھا ہے، آ کے کھا لو۔ تم یہاں آ کے بہت ضدی ہو گئی ہو، کہنا نہیں مانتی، کھاؤ گی پیو گی نہیں تو کمزور ہو جاؤ گی اور ملکہ عالیہ کا غیظ و غضب کا شکار میں بے گناہ بن جاؤں گی۔ شہزادہ مسکرانے لگا کہ اس کی دلہن اپنی انابی کو نخرے دکھا رہی ہے۔ وہ ابھی کھڑا ہو کر اندر کی بات چیت سننے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ گل بدن نے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا، اچھا دیکھو، باہر نہ نکلنا، میں ابھی تمہارے لیے گیہوں کا دلیا لے کر آتی ہوں۔ گل بدن نے دروازہ اچانک کھولا تھا۔ شہزادہ جو اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دھڑم سے اندر جا گرا۔ ادھر گل بدن کے منہ سے چیخ نکلی، ادھر وہ چیخا اور فاختہ شہزادی جو کمرے کے فرش پر دوڑ رہی تھی پھڑ پھڑا کر اڑی اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیروں میں پڑے گھنگرو چھن چھن بج رہے تھے۔ گل بدن مدحواس ہو گئی تھی۔ وہ چلاتی ہوئی فاختہ کے پیچھے دوڑی، ارے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے کہاں جا رہی ہے شہزادی، میرے اوپر رحم کرو، ملکہ عالیہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اپنی چوٹ بھول کر شہزادہ عالی قدر بھی حیران و پریشان دوڑ پڑا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، شہزادی کہاں ہے، یہ چڑیا کیسی تھی، کہاں تھی جو اڑ کر نکلی ہے۔ باہر آ کر اس نے دیکھا ایک بہت خوبصورت تندرست چکنی چکنی فاختہ محل کی دیوار پر بیٹھی ہے۔ شہزادی کہاں ہے؟ شہزادہ عالی قدر نے گھبرا کر پوچھا۔ گل بدن کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہزادے کو دیکھا۔ ابھی تک اسے بادشاہ بیگم کے جلال کا ڈر تھا مگر اب فاختہ شہزادی کا راز کھل جانے کے ڈر نے اس کو دہلا دیا۔ فاختہ پھڑ پھڑا کر اڑی اور پتہ نہیں کدھر نکل گئی۔ اس کے گھنگروں کی کھنک کچھ دیر تک سنائی دینے کے بعد بند ہو گئی۔ شہزادے نے گل بدن کی طرف دیکھا۔ گل بدن کے دماغ میں ایک بجلی سی گوندھی، ابھی وقت گیا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک لمبی اونچی چیخ ماری اور اپنے بال نوچتے ہوئی پاگلوں کی طرح چیخنے اور رونے لگی۔ شہزادے، غضب کر دیا آپ نے، شرط توڑ دی، ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہزادی کا پردہ کھول دیا۔ ارے شہزادے صاحب، یہ فاختہ جو بھی اڑ کر گئی ہے ہماری شہزادی تھی۔
शहजादी, शहजादा हैरत से बोला। हाँ हाँ शहजादी, दरवेश ने कहा था, अगर 12 बरस से पहले किसी की नजर शहजादी पर पड़ गई तो वो परिंदा बन जाएगी। हाय शहजादे, ये आपने क्या किया? मगर मैं तो इसको देख भी नहीं पाया। शहजादे ने बोलना चाहा। अरे, आपने नहीं देखा, इसकी नजर तो पड़ गई आप पर। दरवेश ने बताया कि अगर किसी ने इसको देखा या इसकी नजर किसी इंसान पर पड़ी तो वो परिंदा बनकर उड़ जाएगी। हाय, तभी वो एकदम फड़फड़ा कर उड़ी थी। इसने आपको देख लिया था। अरे, अब मैं क्या करूं? बादशाह बेगम को ये सियाह मुंह किस तरह दिखाऊं? वो जमीन पर गिरकर रोने और लौटने लगी। इसके आंसू झूठे थे। वो जबरदस्त एक्टिंग कर रही थी। हाय, मेरी शहजादी चली गई, उड़ गई, परिंदा बन गई। अब मैं बादशाह बेगम को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे शहजादे साहब, बादशाह सलामत मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। मेरे ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ देंगे। शहजादा बेचारा इस कदर घबराया कि वहां से भाग निकला। ये वाकया बादशाह अलीजा को मालूम हुआ तो उन्होंने गुलबदन को बुलवाया। गुलबदन हाल से बेहाल बादशाह के सामने पहुंची और धड़म से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बड़े जतन के बाद इसे होश आया। तब बादशाह ने कुरेद कुरेद कर इससे पूछा और इसने वही कहानी बताई जो बादशाह बेगम ने इसको रटा दी थी। हाय, न शहजादे ने इसको देखने की गलती की होती, न वो परिंदा बनती। गुलबदन बस यही रटे जा रही थी। बादशाह अलीजा को भी इस कहानी पर यकीन करना ही पड़ा। इसने शहजादे को बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा, मगर होता भी क्या, ज्यादा कहते सुनते तो शहजादा गुस्से में आकर कहीं चला जाता और एक ही अकलौता लाडला बेटा था, वो भी इनकी प्यारी बेगम की निशानी। सब्र करके बैठ गए। गुलबदन ने इनसे दरखास्त की कि इसे वापस इसके मुल्क भेज दिया जाए। अब इसके यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए इसको वापस कर दिया गया। बादशाह अलीजा ने चाहा कि शहजादा आली कदर की दूसरी शादी कर दी जाए, मगर शहजादा तैयार नहीं हुआ। इसके दिमाग में खुदा जाने क्या आया कि वो एक रोज अपने दोस्त वजीरजादे को साथ लेकर जंगल में निकल गया और रास्ते में जाता जिस रास्ते पर इसने फाख्ता को जाते देखा था, सारा दिन वो जंगल में घूमता, एक एक पेड़, एक एक झाड़ी को देखता, नदी के किनारे टहलता, मगर इसको फाख्ता नजर न आती। बादशाह अली जान ने इसको मना करना या टोकना मुनासिब ना समझा। इनका ख्याल था कि शहजादे की ये दीवानगी वक्ती है, कुछ रोज के बाद वो खुद घबरा जाएगा। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर गए। अब उधर का हाल सुने। बादशाह बेगम को जब गुलबदन ने वहां पहुंचकर सब हाल बताया तो बादशाह बेगम ने दिल थाम लिया। एक तो अपनी प्यारी फाख्ता का गम, दूसरी इस बात का गम कि दरवेश ने गलत कहा था। 10 साल हो गए थे, औलाद की आरजू पूरी नहीं हुई थी। औलाद की तरह पाली हुई फाख्ता भी हाथ से जा चुकी थी। इनको फिर दुखों ने घेर लिया। अपने बाग में वो जाती जरूर, मगर अब वो खुशी नहीं रही थी। चुपचाप एक जगह बैठी इधर उधर देखा करती। बादशाह सलामत ने बहुत समझाया, मगर इनकी हालत ना बदली। गुलबदन हर वक्त इनके साथ रहा करती और इनकी ये हालत देखकर कुड़ती रहती। एक रोज बादशाह बेगम बाग में टहल रही थी कि फाटक पर कुछ शोर होगा सा हुआ। पहरेदार किसी को डांट रहे थे। बादशाह बेगम ने गुलबदन से कहा, जाओ देखो ये शोर कैसा है। वो जल्दी जल्दी फाटक की तरफ दौड़ी। बादशाह बेगम आगे बढ़कर हौज के किनारे बैठ गई और खाली खाली नजरों से तैरती हुई रंगीन मछलियों को देखने लगी। अचानक इन्हें ऐसा लगा कि इनकी प्यारी फाख्ता कहीं आस पास चल रही है। घुंघरू छलक रहे थे। वो चौंक कर खड़ी हो गई और बेख्तियार इनके मुंह से निकला, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अम्मा बेगम, आपके पास। एक बहुत मीठी सी नरम नरम आवाज आई और घुंघरू जोर जोर से छनके, छनमन छनमन। साथ ही गुलबदन की खुशी से कांपती हुई आवाज उभरी, मलके आलिया का इकबाल बुलंद हो। आपको अल्लाह ने पली पलाई बेटी अता की है, आपकी फाख्ता शहजादी। बादशाह बेगम को
अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने बाजू पर जोर से चुटकी काटी। बेहद गोरी चिट्टी 10-11 बरस की एक लड़की, जिसके गालों पर जैसे गुलाब खिल रहे थे, जिसकी आंखों में जैसे हीरे चमक उठे थे, और जिसके लंबे लंबे स्याह बाल जैसे सावन भादों की घटाएं झूम रही थीं, सुर्ख रंग के लिबास में इनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये लड़की, बादशाह बेगम हकलाई। आपकी बेटी फाख्ता शहजादी। गुलबदन ने हंसकर लड़की का हाथ पकड़ा और बादशाह बेगम के करीब कर दिया। अल्लाह ने दी है आपको बेटी। ठीक 10 साल के बाद दरवेश साहब ने कहा था ना, औलाद का सुख मिलेगा आपको। बादशाह बेगम खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर लड़की को अपने सीने से लगा लिया। लड़की के जिस्म से गुलाब के फूलों की महक आ रही थी और बाल जूही के फूलों की तरह खुशबुएं लुटा रहे थे। लड़की भी बड़ी मोहब्बत के साथ इनसे लिपट गई। माँ, मेरी माँ, वो बार बार कह रही थी और बादशाह बेगम का मुंह चूम रही थी। मैं आपकी फाख्ता हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैंने आपको पहचान लिया। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। बादशाह बेगम ने कहा, ये तो बता, कैसे आई, किधर से आई? लंबा किस्सा है, आराम से बैठूं तो सुनाऊं। ये सब बातें हो ही रही थी कि बादशाह सलामत भी तशरीफ ले आए। वो हैरान भी थे और खुश तो इतने के मत पूछो। देखा बेगम, मैंने कहा था ना, आपको आपके सब्र का फल मिलेगा। देखिए, मिल गई आपको गुलाब के फूल जैसी बेटी। बादशाह ने भी लड़की को गले लगाया और फिर आराम से सब लोग बैठकर फाख्ता शहजादी की कहानी सुनने लगे। शहजादी बताने लगी, मैं अपने कमरे से बाहर निकली और दीवार पर बैठी तो शहजादे को अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई। इस घबराहट में उड़ती उड़ती शहर से निकलकर जंगल में पहुंच गई। एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर मैंने सांस बराबर की, फिर अम्मा बेगम को याद करके रोने लगी। इस पेड़ के नीचे एक दरवेश साहब कंबल बिछाए बैठे इबादत कर रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बारिश के कतरों की तरह इन पर गिरे तो उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। तुम क्यों रो रही हो प्यारी फाख्ता? उन्होंने शहद की तरह मीठे लहजे में मुझसे पूछा। मैंने सिसक कर कहा, जनाब, मैं अपनी माँ बादशाह बेगम से बिछड़ गई हूँ और अब इनसे मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं। इस लकोदक जंगल में मेरा दिल घबरा रहा है। बताइए, रोऊं नहीं तो क्या करूं? दरवेश साहब के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, तुम बादशाह बेगम की बेटी हो ना? मैंने इनसे कहा था कि एक दिन इनको औलाद की खुशी जरूर मिलेगी और आज शायद वो वक्त आ गया है। आओ, नीचे आओ, डरो नहीं। इनके कहने पर मैं डरती डरती इनके पास उतर आई। उन्होंने मुझे चमकारा और मेरे बदन पर हाथ फेरा। बड़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे, फिर मेरे गले में अपने गले से उतार कर ये माला डाल दी। लड़की ने अपने नाजुक नाजुक गोरे गोरे गले में बड़ी स्याह दानों की तस्बीह किस्म की माला दिखाई और जैसे ही ये माला मेरे गले में आई, मैं फाख्ता से इस रूप में आ गई। लड़की बड़े भोलेपन के साथ बता रही थी, मैं तो बहुत डर गई थी अम्मा बेगर, मगर दरवेश साहब ने मुझे समझाया, तुम मलका की बेटी बनकर आई हो। अब अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, इनका दिल खुश करना और अपनी ससुराल में भी सबको खुश रखना और इस माला को हमेशा अपने गले में रखना। मुझे भूख लगी तो दरवेश साहब ने अपने झोले से निकाल कर मुझे एक रोटी और इसके साथ थोड़ा सा नमक दिया। मैंने वो खाया। आह, क्या बताऊं, इस सूखी रोटी में कितना मजा था। आज भी मेरी जुबान पर वो मजा बाकी है। तुम यहाँ तक आई कैसे मेरी बच्ची? बादशाह बेगम ने पूछा। वही दरवेश साहब मुझे अपने साथ लाए थे। मुझे फाटक तक पहुंचाकर खुद जाने कहाँ चले गए। बस इतना कहा कि मेरा वादा पूरा हो गया बेटी, बस अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। फिर क्या था, हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी, चरागा किया गया और गरीबों को खाना खिलाया गया। इस तरह से बादशाह आलीजा और शहजादा आली कदर को खुशखबरी भेजी गई कि हंसी खुशी आए
और शहजादी को रुखसत करा के ले जाए। बड़ी शान के साथ वो दोनों बाप बेटा आए। शहजादा आली कदर खुश भी था, हैरान भी था कि आखिर शहजादी इतनी दूर कैसे आ गई और किस तरह फिर इंसानी रूप में वापस आई। बादशाह बेगम ने कहा, बेटा, ये कुदरत के करिश्मे हैं, इनके बारे में ज्यादा ना सोचो। बस हमारा घर बस गया, हमें खुशियां मिल गईं, यही हमारे लिए बहुत है। कुछ रोज के बाद फाख्ता शहजादी को बड़ी धूमधाम के साथ शहजादा आली कदर के साथ रुखसत कर दिया गया और इस तरह फाख्ता शहजादी की कहानी खत्म हुई।